Welcome my dear viewers to Soumya's Academy, where you can learn science. So today in this lecture we are going to discuss about solids, liquid and gases of the chapter matter in our surroundings. So before we start the topic solid, liquid and gas, before we gain some idea about solid, liquids and gases, we should know that there are two things which we should know. The first one is the rigid and the second one is the fluid. Rigid and fluid. Okay? These are the two things which we should know, rigid and fluid. So what is the meaning of rigid and what is the meaning of fluid? Rigid कहने से हम लोग क्या समझते हैं and fluid कहने से हम लोग क्या समझते हैं? What is the rigid and what is the fluid? Rigid means, rigid का मतलब होता है which is inflexible. Rigid means unbending. Rigid means unbending or inflexible. Unbending means which cannot be bent, जिसको हम bend नहीं कर पाएंगे. And what is inflexible? Which is not flexible. जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ. This is a marker pen. Okay? तो ये जो marker pen है, can I bend it? मैं इसको क्या bend कर सकता हूँ? नहीं हो पाएगा. If I will take, suppose this is the mobile cover, so I can bend it. Yes or no? So this is the flexibility. Yes or no? तो ये flexible है. But this marker pen is not flexible. Okay? So this is not bending, this is unbending. So I can say that this marker pen is a rigid body. Yes or no? This marker pen is rigid and this mobile cover is not rigid, but it is not fluid. Okay? Fluid नहीं है, but this is rigid. ठीक है? So what is the fluid? The substance, the matter or substance which has the tendency to flow is fluid. Fluid क्या होता है? The matter or substance which has the tendency to flow is fluid. जो flow कर सकता है, सीधी भाषा में अगर हम पढ़ेंगे, आसान भाषा में, जो flow कर सकता है that is the fluid. जो flow नहीं कर पाएगा वो fluid नहीं है कि नहीं? But rigid means unbending or inflexible. जो bend नहीं हो पाएगा, जो flexible नहीं है, that is the rigid body. So उसका एग्जाम्पल rigid body का अगर लेंगे तो क्या लेंगे? Suppose brick, आयरन है कि नहीं? और क्या है? बहुत सारे सॉलिड है कि नहीं? एल्युमिनियम है कि नहीं? और फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड, वाटर, ऑयल, these are the fluids है कि नहीं? Because they have the tendency to flow, they can flow from higher elevation to lower elevation है कि नहीं? तो ये हो गया आप लोगों का रिजिड एंड फ्लूइड. सो हम ये रिजिड एंड फ्लूइड को इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज़ अगर हम इसको पढ़ेंगे देन वी कैन इजीली गेट द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज gases. So what is the definition of solid? So solid is the rigid form of matter. Solid क्या है? Solid is the rigid form of matter. Matter का जो rigid form है वही होता है हम लोगों का क्या? Solid. Then liquid क्या है? Liquid and gas. Liquid and gas क्या है? They are the fluid form of. They are the liquids and gas. Liquid and gas are the fluid form of matter. Matter का कौन सी form है? Fluid form है. Fluid मतलब क्या है? They have the tendency to flow. वो flow कर सकते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बह जाएगा ये
है कि नहीं, हवा बहता है, पानी भी बहता है, तेल बह जाएगा, है कि नहीं, these are the liquid form या फिर fluid form, है कि नहीं, and solid is the rigid form of matter। तो इसमें से हम लोगों को क्या पता चला, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का कुछ डेफिनेशन हम लोगों को पता चला। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं उन लोगों का एक फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। व्हाई do the solids have fixed shape as well as fixed volume? Because the particles which are present inside the solid, they have a very strong forces of attraction। उन लोगों के बीच में सपोज यहाँ पे एक सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज ए सॉलिड। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है सॉलिड के अंदर, दे हैव ए वेरी स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये सब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत स्ट्रांग फोर्स काम करता है, ठीक है ना, जिसके चलते कि आउटसाइड में जो सब रहते हैं ये सब पार्टिकल, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। इसका शेप तब चेंज होगा जब पार्टिकल्स बाहर आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? उसका शेप तब चेंज हो जाएगा जब पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज होगा। तो इस पोजीशन में जो पार्टिकल था अगर वो यहाँ चला जाएगा तो पार्टिकल के मतलब सॉलिड क्या हो गया, उसका शेप कैसे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सब पार्टिकल्स थे फोर्स लगाने से सब यहाँ तक आ गए। समझ में आ रहा है? बट ऐसा सॉलिड के केस में नहीं होता है, बिकॉज दे हैव ए वेरी स्ट्रांग interparticle force of attraction, or you can say that they have a very intermolecular forces of attraction। जो molecules सब रहते हैं यहाँ पे, वो molecules के बीच में, या फिर सिंपली हम लोगों के चैप्टर के हिसाब से we can say that जिस पार्टिकल्स ऑफ इस सॉलिड के अंदर है वो पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। इसीलिए उन लोगों का जो पार्टिकल्स है उन लोगों का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। when there is no change in the position of the particles of the solid, so there is no change in the shape of the solid। ओके, इसीलिए उन लोगों का दे हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। उन लोगों का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। समझ में आया? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड। सो कंप्रेस मतलब क्या होता है कि वी विल चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाय कंप्रेसिंग इट। फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने से इसका शेप क्या हो गया, छोटा हो गया, है कि नहीं, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। This is happening only because of the compression, because I have compressed it, but the solids cannot be compressed। मैं चाहूंगा कि इसको कंप्रेस करके छोटा कर दूं, but this is a solid, I can't compress it। समझ में आया क्या? इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। कंप्रेस करना मतलब कि to reduce its volume, ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते because it has already a fixed volume, ठीक है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज मोर, है कि नहीं, इन ए पर्टिकुलर रीजन। एक रीजन में क्या होता है, सपोज दिस इज ए सॉलिड, ओके, तो ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। गैस एंड लिक्विड के हिसाब से सपोज इस सॉलिड का बात करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, तो मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, इफ वी विल टॉक अबाउट लिक्विड, सपोज ये लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं as compared to the solid। if we will talk about gas, then gas में क्या होता है, और कम पार्टिकल्स रहते हैं, and the gap between the particles is much more। गैप यहाँ पे देख रहे हैं ना, गैस, सपोज दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, पर्टिकुलर सेम है, सेम वॉल्यूम है, और यहाँ पे अगर सेम वॉल्यूम लूंगा तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के हिसाब से क्या है, कुछ कम हो जाएगा। और गैस में क्या होगा, लिक्विड के हिसाब से गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी और कम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई as the number of particles in a particular fixed volume or particular fixed region is less in gas, and it has much more density in liquid, and the gas solids have high density। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें है, सॉलिड में है, because the number of particles is much more, है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इसीलिए ज्यादा है। उसके पीछे भी कारण है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भाई इसमें क्यों ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है बिकॉज देयर इज ए वेरी स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो सब पार्टिकल्स दिख रहा है आप लोगों को, पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है कि नहीं, इसीलिए पार्टिकल यहीं पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उसका डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जिस कंटेनर में हम एक सॉलिड को रखते हैं उस कंटेनर पूरा भरता नहीं है कि नहीं है, पूरा भर नहीं जाता है। क्यों नहीं भर जाता है? सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल, सपोज दिस इज ए ग्लास, ठीक है, एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर सपोज मैंने इस टाइप का स्ट्रक्चर का एक सॉलिड को मैं डाल दिया, ठीक है ना। ये पूरा कंटेनर भरा है क्या? नहीं भरा है। सपोज आप ये सोचोगे कि ये कॉर्नर में तो सॉलिड का सब्सटेंस नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड को मैं रखा हूँ उसका मॉलिक्यूल्स जो है या फिर यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का कुछ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसका पोजीशन चेंज होकर यहाँ तक आ जाता तो मेरा सॉलिड यहाँ तक आके पहुंच जाता। समझ में आ रहा है क्या है? बट as the force of attraction between the particles of the solid is very high, so that's why there is no change in the position of the particles, so there is no change in the shape of the solid, that's why the solid do not fill the container completely. Okay, next आता है solid do not flow. solid flow नहीं करता है, because हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, because solid has a tendency of rigidity, it is unbendable, sorry it is unbending and it is inflexible, it is not flexible, flexible नहीं है, उसको हम बेंड नहीं कर पाएंगे, and also it does not have the tendency to flow, वो फ्लो नहीं कर पाता है। समझ में आया? So these are the properties of solid. तो इसके आगे हम एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, if we will talk about rubber is a solid. रबर समझ में आ रहा है ना? जो इलास्टिक रबर होता है, that rubber is also a solid. But you can say that we can also compress the solid. solid को हम क्या कर सकते हैं? जो रबर है we can compress the rubber, है कि नहीं? रबर को मैं से दबा के छोटा भी कर सकता हूँ, as well as I can stress the rubber, मैं उसको स्ट्रेस भी कर सकता हूँ। But still how can say that the rubber is a solid? तो फिर मैं कैसे कह पाऊंगा कि रबर एक सॉलिड है? क्योंकि मैं क्या जानता हूँ, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बट रबर को मैं कंप्रेस कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम के पास बात में है, लेकिन जो कंप्रेसिबिलिटी का बात आता है, जब मैं उसको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, if I can't compress it, जब मैं उसको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो तब मैं उसको सॉलिड कैसे कहूंगा? So it cannot be a solid, यही ना? But it is a solid, रबर सॉलिड ही है, इसीलिए सॉलिड है because I can compress the rubber या फिर I can stress the rubber by applying some external force. Yes or no? But when the external force is removed, जब मैं उसको स्ट्रेच करना छोड़ दूंगा, then again the rubber will regain its original shape and size. तब क्या होता है कि जब मैं फोर्स को रिमूव कर दूंगा, रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा, और उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज पे फील आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? रबर इज ए सॉलिड। नेक्स्ट आता है हम लोगों का क्या, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, है कि नहीं? सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, है कि नहीं? सॉलिड अपना कंटेनर का पूरा फिल नहीं करता है। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द शुगर एज वेल एज सॉल्ट, उन लोगों का क्या होता है, वो जिस कंटेनर में रहते हैं उसी कंटेनर का शेप ऑक्युपाई कर लेते हैं। सपोज मैं ग्लास में रखूंगा तो ग्लास का शेप जैसा है, शुगर का शेप जैसे बन जाएगा, है कि नहीं? बॉटल के अंदर रखूंगा, सपोज इस प्रकार का जो बॉटल आजकल आ रहा है, तो ये जो बॉटल है, तो इसके अंदर अगर मैं शुगर रखूंगा तो शुगर का शेप इस प्रकार का हो जाएगा, मतलब जिस कंटेनर में रहेंगे। तो हाउ कैन वी से दैट द शुगर इज सॉलिड? तो शुगर अगर लिक्विड का काम क्या है, तो लिक्विड ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर, तो जिस कंटेनर में रहता है उसी का शेप बन जाता है किस लिक्विड का, है कि नहीं? बट सॉलिड का तो ऐसा नहीं होता है। बट इस सॉल्ट एंड शुगर केस में ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज the sugar as well as salts they have a very small size of individual crystals. शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो सब एक एक क्रिस्टल होते हैं, तो वो जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं उन लोगों का स्ट्रक्चर जो है और उन लोगों का शेप जो है इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, उन लोगों का साइज बहुत छोटा है कि नहीं? बट देयर साइज इज फिक्स्ड, उन लोगों का साइज आपका फिक्स रहता है। दैट्स व्हाई वी से दैट द सॉल्ट एज वेल एज शुगर दे आर सॉलिड्स। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। स्पॉन्ज जो होता है हम उस स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर कंप्रेस हो जाएगा
हम सॉलिड के प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर ये जो स्पॉन्ज को कैसे कंप्रेस करते हैं? स्पॉन्ज को हम इसीलिए कंप्रेस कर लेते हैं, वो उसको सॉलिड इसीलिए भी कहा जाता है बिकॉज उसका जो कंटेंट है स्पॉन्ज का वो तो क्या है आपका सॉलिड ही है, बट देयर आर सम माइन्यूट स्मॉल पोर्स इन द स्पॉन्ज, है कि नहीं? तो स्पॉन्ज होता है उसका छोटा छोटा क्या होता है पोर रहता है, and due to the presence of these minute pores whenever we compress the sponge the airs present inside the pores they move out of the sponge। तो जो स्पॉन्ज में छोटा छोटा होल रहता है पोर्स रहते हैं, तो उसी पोर के अंदर क्या रहता है आपका एयर टाइट रहता है, एयर रहता है उसके अंदर, ठीक है ना? जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं एयर हैज द टेंडेंसी टू फ्लो एंड इट कैन आल्सो बी कंप्रेस्ड, है कि नहीं? सो क्या होता है कि एयर जब हम कंप्रेस करते हैं स्पॉन्ज को वो क्या हो जाता है उसके अंदर जो था एयर जब बाहर आ जाता है वो दब जाता है या फिर कंप्रेस हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ओके, so let us now discuss about the properties of liquids। liquid का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? the first property is that liquids have fixed volume but no fixed shape। liquid का क्या होता है जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, उन लोगों का वॉल्यूम इसीलिए फिक्स है बिकॉज the volume कब चेंज होगा when the force of attraction between the molecules is less, then the gap between the particles increases, है कि नहीं? but in case of liquids the intermolecular forces or interparticle force of attraction is not less, yes or no? it is less than the solids। सॉलिड में मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में क्या है सॉलिड के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाएंगे या फिर उन लोगों का पोजीशन में चेंज होगा। दैट्स व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। उन लोगों का शेप लेकिन फिक्स नहीं है, इसीलिए फिक्स नहीं है बिकॉज द लिक्विड्स हैव द टेंडेंसी टू फ्लो इजीली, है कि नहीं? वो जिस कंटेनर में रहते हैं जो सॉलिड होते हैं जैसे द लिक्विड जो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में हम लिक्विड्स को रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर बॉटल में रखेंगे तो लिक्विड का शेप बॉटल जैसा हो जाएगा, अगर एक ग्लास के अंदर रखेंगे तो लिक्विड का शेप ग्लास जैसा हो जाएगा। समझ में आ रही है? जिस कंटेनर में रहेगा उसी कंटेनर का शेप वो बन जाएगा, ठीक है? लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लाइकवाइज द सॉलिड्स द लिक्विड्स आल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जैसे कि हम लोग सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सिमिलर मैनर में लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कंप्रेस तो होगा हल्का, लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो पाएगा मतलब थोड़ा कंप्रेस होगा हल्का, है कि नहीं? जो कि नेग्लिजिबल माना जाता है। समझ में आया क्या? सिमिलरली लिक्विड्स आल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसीलिए कंप्रेस नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्यों कंप्रेस नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल के बीच में गैप इन लोगों का क्या होता है कम होता है। सपोज दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। सॉलिड के केस में क्या होता है कि सबसे कम गैप रहता है, लेकिन इतना कम गैप रहता है कि आप लोग उसको कंप्रेस करके और एक दूसरे के करीब नहीं बना सकते। ऑलरेडी वो एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे हैं, और कितना चिपकाओगे? कंप्रेस करोगे मतलब क्या? जैसे बस में बैठने के लिए 2 सीट है, 3 लोगों को बैठा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन सॉलिड के केस में क्या है, ऑलरेडी 3 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और कंप्रेस करके जरूरत है 4 लोगों को डालने की कोशिश करोगे तो 4 लोग यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं ऑलरेडी एक दूसरे के करीब है, ठीक है ना? बट लिक्विड में भी सिमिलर केस है, वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, लेकिन सॉलिड में जितना करीब रहते हैं उतना करीब लिक्विड में नहीं रहते हैं, ठीक है? फिर भी उन लोगों के बीच में गैप क्या है कम है, इसीलिए हम लिक्विड को भी ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर इन लोगों के बीच इफ there would be some space between the particles of the liquid then we can compress them, है कि नहीं? अगर ये पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस ज्यादा रहता तब हम उसको कंप्रेस कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं होने के कारण we can't compress it, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लिक्विड्स है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इन लोगों का डेंसिटी जो होता है इट रेंजेस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, है कि नहीं? इन लोगों का डेंसिटी क्या है मॉडरेट, है कि नहीं?
लिक्विड का डेंसिटी जो है सॉलिड जैसा ज्यादा डेंसिटी नहीं है और गैस जैसा कम डेंसिटी भी नहीं है कि नहीं? तो इन लोगों का डेंसिटी क्या है? मॉडरेट टू हायर डेंसिटी। मॉडरेट मतलब क्या होता है? बीच में रहता है इन लोगों का जो डेंसिटी है कि नहीं? किसके किसके बीच में रहेगा? बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द गैस। इसीलिए उन लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि ना बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड इज मोर इन ए फिक्स्ड रीजन, है कि नहीं? बट इन केस ऑफ लिक्विड the number of particles is less as compared to the solid and its density is more than the density of the gas. This is only because the number of particles in a fixed region is much more than that of the gas. गैस के हिसाब से यहाँ पे एक रीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, जबकि गैस में क्या होता है? कम होते हैं। और गैस में इन लोगों के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? Liquids do not fill their container completely. Suppose यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लूंगा, suppose this is a container, ठीक है? एक suppose एक ग्लास है, इस कंटेनर के अंदर में पानी रखो, वाटर इज ए लिक्विड, है कि नहीं? सो देखो लिक्विड जो वाटर है, वाटर मेरे पास इतना तक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? वाटर है, यहाँ के ऊपर तक ग्लास का मेरा टोटल है ना, इसीलिए मेरा गैस क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से भरा नहीं गया है, इट इज नॉट फुल्ली ऑक्युपाइड, है कि नहीं? ये पूरी तरह से पानी में इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर इज मोर, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ये उन लोगों को पोजीशन को छोड़ के नहीं जाते, जो जिस पोजीशन में वही पोजीशन में रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इन लोगों का पोजीशन चेंज हो जाता तो यहाँ पे जो पार्टिकल था, वाटर पार्टिकल, वो यहाँ चला जाता, यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता, इधर का पार्टिकल यहाँ, तो पूरा कंटेनर क्या हो जाता? आपका लिक्विड वाटर में भर जाता है। लेकिन जब जो कि ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं होता है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर या फिर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है? That's why we can say that liquids do not fill their container completely. Liquids can flow easily. आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, liquids has the tendency to flow from higher elevation to lower elevation, है कि नहीं? उच्च से नीचे जाकर तक क्या होता है? वो इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है? So they have the tendency to flow. वो आसानी से फ्लो कर जाता है। Clear? Next we will discuss about the properties of gases. Right now we will have a glance on the properties of gases. Gases का क्या क्या properties है? देखिए, the first property is that gases have neither fixed shape nor fixed volume. जो गैस होते हैं उन लोगों का particular fixed shape और fixed volume नहीं रहता, ना उन लोगों का fixed shape है ना उन लोगों का fixed volume है। This is because there is the force of attraction. The force of attraction between the particles of the gas is very 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 less. इन लोगों का पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है कि बहुत कम रहता है। दैट्स व्हाई इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। उन लोगों का कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता है। पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इन लोगों का कोई शेप नहीं रहता है। शेप तभी रहता है जब पार्टिकल्स क्या रहते हैं? फिक्स्ड पोजीशन में रहता है। लेकिन इन लोगों का पोजीशन तो हमेशा बदलता रहता है, उड़ जाता है, इधर 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 उधर सब भटकने लगते हैं गैस पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इन लोगों का वॉल्यूम आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर में फुल हो जाता है। उसका वॉल्यूम जितना है गैस का वॉल्यूम उतना हो जाता है। छोटे डब्बे में रखोगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं? उसको हम आगे बढ़ेंगे। जो कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैस को हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। कंप्रेस मतलब कि उसका वॉल्यूम हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। आप लोग देखे होंगे घर में हम लोग जो डोमेस्टिक पर्पस में जो घर पे जो खाना बनाने के लिए जो गैस यूज करते हैं घर पे, है कि नहीं है? वो जो सीएनजी गैस उसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है कि नहीं? वो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसको हम कंप्रेस करके रखते हैं। वो तो नेचुरल गैस है ही और फिर उसको हम कंप्रेस करके रखते हैं। कंप्रेस मतलब कि उसका वॉल्यूम हम कम कर देते हैं। कम कर देंगे कैसे? सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है ना? यहाँ पे सब गैस पार्टिकल्स है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के नाते इन लोगों के बीच में गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या किया? उसको कंप्रेस कर दिया। उसका वॉल्यूम सपोज
इतना कितना सपोज 64 मीटर क्यूब था उसका वॉल्यूम, उसको मैं कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद इसी के अंदर ये जितने सारे सब पार्टिकल्स थे ना सब नीचे आ गए, तो इसके अंदर सब आ गए, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, सपोज कितना हो गया 49 मीटर क्यूब हो गया, है कि नहीं। तो मतलब कि उसका वॉल्यूम में कुछ कम हो गया, है कि नहीं। कम वॉल्यूम के अंदर हम सारे गैस को रख लिए, तो मतलब उसका वॉल्यूम में चेंज हो गया। इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम वी कैन से दैट द गैस इज कंप्रेस्ड, है कि नहीं। गैसेस हैव लो डेंसिटी, इन लोगों का डेंसिटी भी कम है, इसीलिए इन लोगों का डेंसिटी कम है, बिकॉज़ इन ए फिक्स्ड रीजन, है कि नहीं, देयर आर वेरी फ्यू गैस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सपोज ये एक जगह है, इसके अंदर बहुत कम गैस पार्टिकल्स आप लोगों को मिलेंगे, है कि नहीं। गैस पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, जिस कंटेनर में रखो, जैसे कि वाटर लिक्विड को रखते थे, लिक्विड में को एक कंटेनर के अंदर जब हम रखते थे इतना तक लिक्विड रहता था, समझ में आ रहा है, लिक्विड इतना तक मान लो भी रहता था, तो पार्टिकल्स क्या होते थे, सेपरेट होके नहीं जाते थे। बट गैस के केस में क्या होगा, इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड सरफेस, गैस का तो कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड सरफेस नहीं, लिक्विड की तरह ना, लिक्विड का जैसे कि ऊपर का सरफेस रहता है कि लिक्विड सरफेस, लेकिन गैस का जैसा कुछ है नहीं, ये मॉलिक्यूल्स जहां पे रख देंगे वहां पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो मतलब कि पूरा कंटेनर के अंदर हर जगह क्या हो जाएंगे, ये फैल जाता है, कौन, गैस फैल जाता है। बट सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैसेस फ्लो इजीली, जो गैस होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, है कि मान लो कि घर के एक कोने में हम अगरबत्ती जलाए तो उसका स्मेल क्या हमारे तक आके पहुंच के हमारे नाक के पास, ऐसे कैसे हो गया, दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो फ्लो करने का जो टेंडेंसी होता है उसी के चलते फ्लो होकर गैस हमारे नाक के पास आ गया, ठीक है ना। तो यही था, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहा जाता है, एक्चुअल कारण उसके पीछे डिफ्यूजन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ में आया। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, सो इन द कमिंग लेक्चर वी विल गो फॉर डिफ्यूजन, ओके। हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, डेंसिटी के हिसाब से, है कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है ना, किसका क्या क्या ज्यादा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच कुछ कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी के अंदर बात करेंगे, किसका बात करेंगे अभी, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, डेंसिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो सॉलिड का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, किसके हिसाब से, लिक्विड के हिसाब से, है कि नहीं। और लिक्विड से और किसका कम है, गैस का सबसे डेंसिटी कम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, वो भी सॉलिड में ही ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम है, और सबसे कम किसमें है, गैस में कम, ठीक है। इतना ही है जो कि हम लोग जो पढ़े हैं तो उसका कंक्लूजन है। तो स्टूडेंट्स, सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सो आई होप दैट यू ऑल विल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।